Hello friends, this is Indrapreet Kaur, your chemistry teacher. Welcome to my YouTube channel Mathical. So in the last video, we had discussed types of chemical reactions and we have completed one reaction, that is combination reaction. Now we will discuss the next type, that is decomposition reaction. Now what is a decomposition reaction? As the name suggests, decomposition means breaking down. What does decomposition means? It means to break down. When a single reactant breaks down to give simpler products. For example, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, हम लेके आए, हमने एक बार उसकी सील खोल दी, ठीक है, तो फिर पड़े पड़े धीरे धीरे क्या है, उसमें जो गैस है वो ख़त्म हो जाती है. अब उसमें जो गैस है वो ख़त्म हो रही है, वो है क्या एग्जैक्टली? सो इन द कोल्ड ड्रिंक वी हैव कार्बोनिक एसिड, दैट इज़ H2CO3. It decomposes to give water and कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज करके हमें क्या देगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो वाटर तो कोल्ड ड्रिंक में ही रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाती है. जो भी हमारी स्पीशीज गैसियस स्टेट में बनती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय दिस अपवर्ड एरो. ओके, this upward arrow suggests that this compound is a gas and this is a liquid. Okay, so now this a single reactant, it is breaking down into simpler products, that's why it is a decomposition reaction. और decomposition reaction में एक खास बात और है कि these are of endothermic nature. Endothermic का मतलब that heat energy has to be given in this reaction. ये reactions energy को क्या करेंगी? absorb करेंगी. Okay? Now moving on to the types of decomposition reactions, we have three types of decomposition reactions. First one is thermal decomposition, second is photochemical decomposition, and third one is electrolysis. Okay? So now what is thermal decomposition? The word thermal means heat and decomposition means breaking down. When heat energy is used to decompose substances, when heat energy is used for the decomposition process. Okay, so उन reactions को हम क्या बोलेंगे? Thermal decomposition reactions. जैसे अगर example लें हम, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट. क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का एक कॉमन नेम क्या है? लाइमस्टोन. कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? लाइमस्टोन. ओके, अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? दिस ट्राइंगल. दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स दैट हीट इज गिवन इन दिस रिएक्शन. सो वी विल गेट calcium oxide plus carbon dioxide. This calcium oxide is also known as quicklime. Calcium oxide is also known as quicklime or simply lime. And this we all know is a carbon dioxide. It is a gas. So upward arrow to represent any gas. Okay. So यहाँ पे this calcium carbonate, it is of which color? It is of white color. And the calcium oxide we are getting, it is of either white or grayish color, a little grayish. It means you will observe the change, that some color change is there and some gas is getting evolved. Okay, so this is a type of thermal decomposition reaction. Let's take another example of thermal decomposition. For example, I have lead nitrate. I have lead nitrate. The valency of lead is +2, the valency of nitrate is -1. That's why this formula. Okay, so if I heat this substance, heat, triangle sign used. Okay, so we will get lead oxide plus nitrogen dioxide, and along with that we will get oxygen gas. Now this reaction is unbalanced, so let's balance. So here we will have 2 and here we will have 4. Now this reaction is balanced. अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, now what are the observations?
इस रिएक्शन से जो हमसे पूछा जाता है पेपर में, तो दैट आर दी ऑब्जर्वेशंस, कि हमने लेड नाइट्रेट लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसको हीट किया, व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दिस लेड नाइट्रेट इट इज ऑफ वाइट कलर. लेड नाइट्रेट कौन से कलर का है? वाइट. व्हेन वी हीट दिस वी विल गेट lead oxide. Now this lead oxide is of yellow buff color, or you can simply write yellow color or buff color. Okay, yellow buff color. अब yellow buff color कौन सा है? जैसे जो लेदर का कलर होता है ना, that color is known as yellow buff color. And along with that we are getting this nitrogen dioxide. This nitrogen dioxide has brown fumes. This nitrogen dioxide has ब्राउन फ्यूम. जो लेड ऑक्साइड बना है दिस इज इन सॉलिड स्टेट. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कि दैट दिस कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड एज येलो प्रेसिपिटेट्स. ओके, दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट इज अ गैस, दैट्स वाई दिस वर्ड फ्यूम्स. फ्यूम्स क्या होता है? जैसे धुआं निकल रहा है. ओके, ब्राउन से कलर का धुआं निकलता है. सो क्योंकि ये गैस है तो वी विल यूज एन अपवर्ड एरो. और ऑक्सीजन भी क्या है? अगेन अ गैस, अपवर्ड एरो. ऑक्सीजन जो है ये एक हमारी कलरलेस गैस है. सो इसीलिए वी आर नॉट मेंशनिंग एनी कलर बिकॉज वी वोंट नोटिस इट, क्योंकि हमें तो दिखाई नहीं देगी कि ये भी निकल रही है. वी विल ओनली ऑब्जर्व दीज वाइट फ्यूम्स एंड दैट दिस सॉल्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम वाइट टू येलो. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. I have ferrous sulfate. I have ferrous sulfate, FeSO4. Okay, it is a crystalline salt. इसके साथ होता है 7 वाटर. जब हम इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये रिमूव हुआ यहाँ से. अभी क्या है, इट इज़ अ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल गेट एनहाइड्रस सॉल्ट. क्या हो जाएगा, वी विल गेट एनहाइड्रस सॉल्ट. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगा. ओके, दिस फेरस सल्फेट इज ऑफ ग्रीन कलर. कौन से कलर का है ये? ग्रीन. आप जैसे ही इसको हीट करोगे इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? दिस ग्रीन कलर चेंजेस टू वाइट. कौन से कलर का हो जाएगा ये? वाइट. फिर आप अगर इसको फर्दर हीट करते हो देन दिस फेरस सल्फेट डीकम्पोजेस. फिर से हीट करने से क्या होगा, फेरस सल्फेट क्या करेगा, डीकम्पोज करेगा. ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3. along with that we will get SO2 gas and also SO3 gas. Okay, now this is of white color and this is what फेरिक ऑक्साइड. अब फेरिक क्यों बोला, क्योंकि जब हमने ये कंपाउंड बनाया तो आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, 3. तो यहाँ पे 3 जाएगा +3. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जिसका लिंक आई बटन में शेयर है कि अगर आयरन पे +3 है देन वी विल कॉल इट फेरिक, और अगर +2 है देन वी विल कॉल इट फेरस. जैसे यहाँ पे SO4 के ऊपर क्या होता है 2-, आयरन के ऊपर क्या चला गया +2. तो यहाँ पे वी कॉल्ड इट फेरस सल्फेट एंड हेयर वी आर कॉलिंग इट ferric oxide. Okay, it's just about the charge. Now this ferric oxide it is of reddish brown color. ferric oxide कैसा होता है, reddish brown. और आप इसको क्या बोल सकते हो, rust color, क्योंकि this is basically rust. Okay, along with that we are getting two gases, sulfur dioxide and sulfur trioxide. तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये स्टार्ट यहाँ से होती है कि हमने क्या किया, फेरस सल्फेट लिया जो कि ग्रीन कलर का था, आपने उसको हीट किया. हम तो लगातार हीट करते जा रहे हैं ना, हमें पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट स्टेप कब हुआ और सेकंड कब हुआ. ओके, हम उसको लगातार हीट कर रहे हैं तो ग्रीन से उसका कलर कन्वर्ट हो गया वाइट में, फिर जो वाइट है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया रेडिश ब्राउन में. सो दिस इज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट. ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली दीज कलर चेंजेस. Questions are asked on the basis of these. Next we have photochemical decomposition. Now what is this photochemical? This photo words comes from light, as you know, photosynthesis. ठीक है, photochemical decomposition कौन सी हो गई, decomposition with the help of light. decomposition
with the help of light. लाइट अगर किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर दे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिल्वर क्लोराइड, हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है. ओके, दिस सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू सनलाइट, हमने क्या किया, सनलाइट में रखा. जब सनलाइट लिखते हैं तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं एच न्यू. क्या यूज कर सकते हैं, एच न्यू, और यू कैन सिंपली राइट सनलाइट. ठीक है, इसमें से एच जो है ये कांस्टेंट है और न्यू जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है. ये आप क्लास 11 में पढ़ोगे कि ये कहाँ से आया. ओके, सो AgCl when subjected to sunlight it is converted into silver and chlorine. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, silver and chlorine. This reaction is unbalanced, so let's balance this reaction. We will write 2 over here, 2 over here, and now this reaction is completely balanced. Okay, so यहाँ पे क्या है, क्लोरीन फिर से गैस है, so upward arrow. Ag जो है वो सॉलिड स्टेट में बनेगा, that's why a downward arrow. ओके, यहाँ पे जो सिल्वर बनता है ये एग्जैक्टली सिल्वर कलर का नहीं बनता, ये थोड़ा ग्रेइश ब्लैक बनता है. कैसे कलर का बनेगा ये, ग्रेइश ब्लैक. ब्लैक टोन में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम सिल्वर आयंस को सिल्वर एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास Ag+ था ना, सिल्वर आयन, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एटम. सो इसीलिए यहाँ पे जो लैब में जब हम बनाते हैं तो कलर बनता है थोड़ा ब्लैकिश टोन में बनता है. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सिल्वर का कोई और सॉल्ट ले लूँ जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इससे भी क्या बनेगा, सिल्वर, एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल गेट ब्रोमीन गैस. गैस है, अपवर्ड एरो. ठीक है, बैलेंस कर देंगे. ओके, सो दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन फोटोग्राफी. आजकल तो चलो हमारे पास डिजिटलाइजेशन काफ़ी हो गई है. अदरवाइज़ पहले क्या होता था, फ़ोटोज़ क्लिक करते थे, फिर हम शॉप पे जाते थे, उसके नेगेटिव्स बनाते थे फोटोग्राफर. ठीक है, तो उन नेगेटिव से फ़ोटो डेवलप करी जाती थी. तो वहाँ पे किसका यूज़ होता था, सिल्वर सॉल्ट्स का. इन पे क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है तो हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है. ओके, सो दीज वर यूज्ड इन फोटोग्राफी. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो वर्ड है तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी का रोल है यहाँ पे. ठीक है, तो अगर हम डीकम्पोजिशन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, इलेक्ट्रो जो वर्ड है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो लीसिस है, लीसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, डीकम्पोज करना. ओके, सो चलिए अब यहाँ पे क्या है, इसकी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर. क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर. वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे सो वी विल गेट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. क्या क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन. ओके, सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है, बहुत बार उसकी रेशो भी पूछ ली जाती है. सो वी आर गेटिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 2:1. अगर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन के हैं देन वी विल गेट ओनली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नाउ अब ये होता कैसे है, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. हम कोई भी, आप एक बीकर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कोई एपरेटस ले लो. एक एपरेटस बना रहे हैं हम. ठीक है, एक बीकर लिया हमने जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स रखी. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स क्या है, देखो बिल्कुल वैसे जैसे आपके पास घरों में सेल होता है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो एक तरफ पॉजिटिव मार्क्ड होता है, एक तरफ नेगेटिव मार्क होता है. वी कॉल इट टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल. ओके, दोज टर्मिनल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोड्स. तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ली, एक का नाम रख दिया हमने एनोड, एक का नाम रख दिया कैथोड. ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया. ठीक है, दिस इज व्हाट, अ बैटरी. ओके, और हमने क्या किया, पानी भर दिया यहाँ पे, वाटर. एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर तो है ही है, प्लस अ लिटिल बिट ऑफ एसिड इज ऑल्सो एडेड. ठीक है, वी कॉल इट एसिडिफाइड वाटर. क्या बोलेंगे इसको, एसिडिफाइड
वाटर। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि प्योर वाटर क्या है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। एसिड क्या प्रोवाइड करेगा हमें? H+ आयंस, प्रोटॉन्स। तो इसी से क्या होता है, वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई इट्स ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सो वन हेयर वी हैव एनोड एंड कैथोड। बैटरी है, हमने पानी भर दिया इसमें। जैसे ही आपका ये सर्किट कंप्लीट होगा, क्या होगा, ये जो वाटर है इसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। एट एनोड यू विल गेट ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, अगली जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।